Hello everyone, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the botany MCQs for competitive examinations. सबसे पहले angiosperms have dominated the land flora primarily because of they have power of adaptability in diverse habitats. एंजियोस्पर्म्स जो हैं हर तरह की हैबिटाट्स में अडॉप्ट कर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने लैंड को डोमिनेट कर लिया है। जैसे कि इन एक्वाटिक environment, in terrestrial, in deserts, in rocks, everywhere they can adapt or thrive. Edible part of mango is mesocarp. mesocarp होता है जिसको हम खाते हैं मैंगो में। In chloroplasts, the chlorophyll is present in the thylakoids. thylakoids में chlorophyll मौजूद होता है। In glycolysis, during oxidation, electrons are removed by NAD+. Duff kept overnight in warm weather becomes soft and spongy because of fermentation due to the presence of yeast and bacteria. The most likely reason for the development of resistance against pesticides in insects damaging a crop is they acquire heritable changes and become pesticide resistant. The following ratio is generally constant for a given species. According to Erwin Chergaff, the amount of guanine should be equal to cytosine and amount of thiamine is equal to be adenine. So G plus C and A plus T is the right one. A self-fertilizing trihybrid plant, it forms 8 different gametes and 8 multiplied by 8 becomes 64. They form 64 different zygotes. Lichens are well-known combination of an alga and fungus, where fungus has a symbiotic relationship with the alga. Which of the following is expected to have the highest value in grassland ecosystem? Grassland ecosystems have more gross primary productivity या सिर्फ gross production. They have more gross production. Option 2 करेक्ट है। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन के मुताबिक, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया? किसी भी एरिया की प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या किया जाए? अपना ओपिनियन बताइए। तो ये होगा बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर लार्ज लैंड एरिया जो है ज़मीन का, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी वेजिटेशन को, उसके फाना को, फ्लोरा को, और इसी तरह से हम प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called micropropagation, because in tissue culture we obtain or we use cells or tissues to obtain the number of plantlets, and that technique is known as micropropagation. The most abundant element present in plant body is carbon. Diversification in plant life appeared due to long periods of evolutionary changes. A major component of gobar gas is methane, CH4. Free living nitrogen fixing cyanobacterium, which can also form symbiotic association with the water fern Azolla.
ऐसा साइनोबैक्टीरियम जो फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाता है एजोला के साथ, उसका नाम बताना है, तो वो है एनाबीना, जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, एज वेल एज एजोला के साथ मिलकर पैडी की फील्ड में, राइस की क्रॉप की फील्ड में उससे मिलकर एसोसिएशन बनाता है। और एजोला जो है एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है इन द पैडी फील्ड। एजोला बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स, aquatic fund। Plants adapted to low light intensity have large photosynthetic unit, क्योंकि जितना लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट होगा उतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेंगे देन सनलाइट, मीन्स लाइट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी। वो प्लांट्स जो शियोफाइट्स होते हैं, जो शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं, उनके लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं। देन सन प्लांट्स, द टाइप प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इज़ ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। वो अक्सर करके यूज़ किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए। दिस प्लाज्मिड इज़ फाउंड इन, वो प्लाज्मिड कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? सो इट इज़ फाउंड इन अ बैक्टीरियम विच इज़ नोन एज एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. After a mutation at a genetic locus, the character of an organism changes due to change in protein synthesis pattern. According to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? According to Oparin, oxygen was absent. Chemically, hormones are proteins, steroids, as well as biogenic amines. One of the parents of a cross has a mutation in its mitochondria. In that cross, that parent is taken as a male, और वो parent as a male taken किया जाता है. During segregation of F2 pyrogenes, that mutation is found in none of these, क्योंकि जो मेल का माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता फर्टिलाइजेशन में या जाइगोट बनाने में, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मोस्टली सेल एग सेल में अवेलेबल होते हैं, ना कि स्पर्म सेल में, इसीलिए कोई भी अफेक्टेड प्रोजेनी नहीं होगा. An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect stops will be having, they have low stability, and जो easily damage हो जाए तो उसमें लो stability होगी और high resilience होगी. In a longitudinal section of a root starting from the tip upward, the four zones occur in the following order. जब एक रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे LS, तो उसके नीचे से टिप से अपवर्ड तक के 4 जोन्स ऑर्डर में बताएं. तो उसमें सबसे पहले रूट कैप आ जाएगा, उसमें उसके बाद सेल डिवीज़न होती है, देन सेल एनलार्जमेंट, देन सेल मैचुरेशन. तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा. In oogamy, fertilization involves a large non-motile female gamete. लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट होता है एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट होता है. स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट होगा जिसमें सीलिया या फ्लैजिला होंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिविंग फॉसिल? कौन से प्लांट को लिविंग फॉसिल कहा जाता है? तो इट इज़ अ साइकस विच बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स एंड दे आर known as living fossils. In which one of the following habitats does diurnal temperature of soil surface vary most? In desert. डिज़र्ट में दिन के टाइम बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि वेजिटेशन नहीं होती, खुला एरिया होता है, इसीलिए सनलाइट ज़्यादा मीन्स उस पर सरफेस पे आती है. और जबकि रात के टाइम पे वही जो टेम्परेचर होगा वही हीट होती है, वो एवापोरेट हो जाती है और रात के टाइम टोटली चेंज हो जाता है. द टीलोमेयर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ guanine rich repeats. They have telomers of eukaryotic chromosomes. They have guanine rich repeats. Which of the following
विच फॉर्म ऑफ RNA हैज़ अ स्ट्रक्चर रिजम्बलिंग क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ जो है इट इज़ अ ग्रॉस एंड फॉडर फॉर कैटल, जैसे कि सो इट बिलोंग्स टू फेबेसी फैमिली। और जो ऐसा RNA बताएं जिसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ की तरह, ये जैसे मैंने बनाया है थोड़ा बहुत इसी तरह नज़र आता है, तो वो होता है ट्रांसफ़र RNA, जो अमीनो एसिड्स को पिक करता है, उसी का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, जिसको क्लोवर लीफ भी बोलते हैं, क्लोवर लीफ RNA। A nutritionally wild type organism which does not require any additional growth supplement is known as प्रोटोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ ऐसी म्यूटेंट है जो सब कुछ अपना खुद बनाते हैं, जैसे अपने अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन हो गए, एवरीथिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट्स थ्रू लीफ टिप्स। वॉकिंग फर्न, इसीलिए इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, और उसका नाम होता है एडियांटम कार्डेटम या सिर्फ एडियांटम, जो अपने रूट जो अपने लीफ की टिप से प्रोपेगेट होते हैं। जैसे ही लीफ टिप्स ज़मीन को टच करती हैं, वहीं से वो दूसरी ब्रांचेस को एराइज करके आगे बढ़ते जाते हैं, इसीलिए उसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ एस्कर्शा कोलाई या ई कोलाई, जो कि वाटर में फीकल मैटर की प्रेजेंस को शो करता है। Phenetic classification of organism is based on phenetic, it is known as numerical classification, numerical taxonomy, and it is observable characteristics of existing organisms. If you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? अगर आपको ऑनियन रूट टिप्स दी जाए और कहा जाए कि आपने क्रोमोसोम्स को काउंट करना है, तो आप कौन से फेज़ में, माइटोसिस के कौन से फेज़ को चूज़ करना पसंद करेंगे और क्यों? बिकॉज ये इसका करेक्ट होगा मेटाफेज़, क्योंकि मेटाफेज़ में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे होते हैं और इजीली विजिबल होते हैं और इजीली हम उसको काउंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन मेटाफेज़ विल बी करेक्ट वन। When a diploid female plant is crossed with a tetraploid male, the ploidy of endosperm cells in the resulting seed should be tetraploidy, क्योंकि एम्ब्रियोसेक में जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। अब मेल का बोला है वो टेट्राप्लॉइड है, तो उसके जो स्पर्म्स बनेंगे वो क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। अब 2 न्यूक्लियाई पहले से मौजूद हैं, 2 मेल के आएंगे, तो एंडोस्पर्म क्या बन गया? एंडोस्पर्म बन गया टेट्राप्लॉइड। थैंक यू।